Okay. Good morning, everyone. And today we are going to start with our current affairs. And as usual, we'll start with the quotation. Okay. So first of all, good morning and keep calm. So this is a beautiful, beautiful morning to start with today's current affair. And with this, I remember one quotation, and it says, "Do not wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect." So by whom it is said? It is said by Zoe Savored. And today is 5th January, a beautiful morning. And with this, it is the first week of the year, and it's already here, right? And every day that passes is opportunity you cannot get back. So many students feel I started late, or they feel that maybe I'm not doing enough, or they have these issues with them. You think they are not preparing well, right? So thinking that I don't have enough time for prelims or others are ahead of me. So let me tell you something, that it is absolutely, absolutely fine to think all of these things. Hannah, the difference between a dreamer and doer is what you choose to do with this moment, right? Every small effort you make today builds the bridge to your success tomorrow. And this is exactly how you have to take your steps. So think of yourself as a gardener. The seeds you plant today, like habits is there, focus is there, learning is there, right? The soil, your mind, right? And discipline is like water, right? Your efforts. So if you nurture it well, growth will come naturally, right? And if you wait, nothing will happen, right? No matter how the fertile soil is. As Aristotle with this one says that we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but it is a habit, right? Good morning, Pradeep and everyone. Okay, so now there is one task for as well. Task is for 5th January 2026. What you have to do in the comment section, write one thing that you will do today that will directly bring you closer to your goal. So it could be finishing topic, revising a subject, right? Solving mock test, or something that was pending, right? Anything that you think that will make you closer to your one step, right? Remember, time waits for no one. What you do today becomes your future. So take a deep breath, your mind, and let's make today perfect, perfect. And now with this, let's start with our first current affair. Okay. Let's move to our first current affair. So let's see. So US strikes Venezuela, Maduro in US custody, VP Del C Rodrigo is named interim president. Okay. So very important news. And also, I'll tell you backstory of it, and I'll tell you why this happened and how it is going to impact globally as well. ठीक है? So make sure that you understanding it like a story. ठीक है? अब बात कर लेते हैं. So think about a country in South America that has a lot of oil. ठीक है? और उसके साथ साथ में सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है. ठीक है? तो दिस कंट्री हैज बीन फेसिंग, ठीक है, टेंशंस फॉर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स. नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं. स्पेशली किसके साथ? स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के साथ. तो इनके जो प्रेसिडेंट है, राइट, निकोलस मोडुरो, तो हैज लाइक ऑफन एक्यूज्ड द यूएस ऑफ ट्राइंग कंट्रोल वेनेजुएला, राइट. लेकिन यूएस हैज अक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग और अथॉरिटेरियन रूल. ठीक है? तो इंटरनली कंफ्लिक्ट इनके रहते ही रहते थे, ठीक है, यूएस के और वेनेजुएला के, राइट. सो दिस वाज द इशू दैट वाज लाइक गोइंग फॉर पास्ट मेनी इयर्स. अब क्या होता है 3 जनवरी 2026 को कि पीपल लिविंग इन कार्गस, द कैपिटल सिटी, वेयर सडनली दे वोकन अप, ठीक है, और बहुत लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आती है. तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि फ्लाइट ऑफ प्लेन्स आर देयर, ठीक है, दे आर वेरी लाइक फ्लाइंग लो इन द स्काई. और फिर सून ही क्या रिपोर्ट आती है कि एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, नियर बाय प्लेसेस में. नाउ दिस कुड बी सीन कि लाइक स्मोक इज राइजिंग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. तो ये हुआ था अराउंड 2 o'clock,
राइट। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाता है, पीपल स्टार्टेड वरीड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, राइट, पीपल केम आउट ऑफ द हाउसेज एंड स्टार्टेड थिंकिंग एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वेनेजुला गवर्नमेंट, राइट, दे क्विकली रिएक्टेड टू इट with this president Nicolás Maduro, and he says that this was a military attack by the United States and he declared a state of emergency there, ठीक है। और उन्होंने लोगों को बोला कि political groups, like he basically asked people and political group of the country to stand together and protect their nation. So this is said by the president Maduro. Now इसी के साथ साथ में क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बनाई। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट हैड कैरिड आउट अ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट वेनेजुएला, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये जो मिलिट्री टारगेट था वो इंपॉर्टेंट था एंड व्हाट वाज कंसीडर्ड एज अटैक, ठीक है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि प्रेसिडेंट मडूरो जो है और उनकी वाइफ है उनको कैप्चर कर लिया गया है एंड दे आर टेकन आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि यूएस माइट टेम्परेरी कंट्रोल वेनेजुएला अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंटरनली जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों की चल रही है। ओके, नाउ एज आई सेड बिफोर एज वेल, कुछ भी होता है मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। कोई भी कहानी सुन रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ी होगी, राइट। सो दिस चैट बॉक्स शुड नॉट स्टॉप व्हाइल लिसनिंग टू मी, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन एज वेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि दिस इवेंट लाइक शॉक द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना जो है उसने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करा इस चीज पे, राइट। और उन्होंने डिमांड किया कि मडूरो को, उनकी फैमिली को रिलीज किया जाए। सो चाइना सेड दैट अटैकिंग अनदर कंट्री इज लाइक ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। और दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बातचीत करने से, ठीक है, वायलेंस के थ्रू नहीं होनी चाहिए। तो बाकी कंट्रीज ने भी, ठीक है, उन्होंने भी और इंटरनेशनल बॉडीज ने भी दे आल्सो बिकम वरीड, ठीक है। तो इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, उन्हें बुलाया गया, right, as people feared that this situation could be the like whole Latin American region unstable, ठीक है। तो आसान शब्द में समझा जाए तो क्या हुआ है कि एक्सप्लोजन हुआ वेनेजुएला की कैपिटल में, ठीक है, 3 जनवरी 2026 में, जब वेनेजुएला कॉल्ड यूएस मिलिट्री एग्रेशन, राइट। सो यूएस रिपोर्टेडली कंडक्टेड स्ट्राइक्स एंड आल्सो क्लेम टू हैव कैप्चर्ड प्रेसिडेंट मडूरो, ठीक है। उनकी वजह से क्या हुआ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई वेनेजुएला में और इंटरनेशनल अलार्म वाज देयर ओवर द सिचुएशन, राइट। अब ये समझेंगे कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। People are saying this is like Iraq 2.0. We can say that क्योंकि इतने vast changes and this is problematic. This is the like question that is coming. कहाँ है sovereignty? ठीक है? Where are the concepts that people write on the papers, right? So yes, these things raises deep questions. Okay. पहले अब history समझने से पहले let's understand that why we are reading this news. Connect किस पेपर से कर रहा है? चलो. So as it is, this news is connecting to us. GS2, राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉज, रूल्स ऑफ यूएनसी, वीटो पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे मेजर पावर जो है जैसे कि यूएस है वो इंटरेक्ट करता है सोवरेन स्टेट्स के साथ, ठीक है, और ग्लोबल डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। GS3 की बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, पावर ऑफ वर्सेस मोरालिटी, रियलिज्म इन वर्क्स, राइट। सो दीज थिंग्स विल अंडरस्टैंड। क्रॉस मिलिट्री एक्शन कैसे होता है, इम्प्लीकेशन क्या है रीजनल सिक्योरिटी में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का वो रोल क्या होता है, इंटरनेशनल लॉज कैसे एड्रेस करते हैं ऐसी कंट्रीज के साथ में, लाइक दिस स्टेप वाज टेकन बाय द यूएस, ठीक है। माइट इज राइट, यूएस इज थिंकिंग इज दिस, ओके। चलो अब कहानी समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो 2026 जनवरी की बात है एंड पहले वेनेजुएला को समझना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला क्या है। तो वेनेजुएला इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व होता है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, ठीक है। जब भी हमारे पास ऑयल रिजर्व की बात आती है किसका नाम आता है, सऊदी अरेबिया। नाउ वी हैव अ कंट्री जो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व करती है, राइट। सो ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द वेनेजुएला एंड ऑल्सो द मेन रीजन कि ये ग्लोबल पावर्स क्यों इंटरेस्टेड है वेनेजुएला में, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है इतना ज्यादा वैल्यूएबल है तो कंट्रोल वेनेजुएला पर करना चाहते हैं लोग, राइट। एंड दिस इज लिंकिंग अस विद व्हाट, पावर के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, फॉरेन इन्फ्लुएंस के साथ, है ना, एंड स्पेशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट। तो इतने टाइम से क्या हो रहा था कि फॉरेन ऑयल कंपनीज जो है एंड मोस्टली फ्रॉम द यूएस और उसकी जो एलाइज है, राइट, उन्होंने जो है बहुत लार्ज प्रॉफिट कमाया है वेनेजुएला ऑयल से, है ना। तो दीज ऑर्डिनरी वेनेजुएलियंस हाउएवर दे रिमेन पुअर, ठीक है। इंटरनली जो है यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमेशा ही देखने को मिली है, इवन आफ्टर बीइंग सो रिच इन ऑयल, ठीक है। इतना ज्यादा रिच होने के बाद भी इंटरनली जो है वेनेजुएलियंस को प्रॉब्लम हमेशा रही है, राइट। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डीप एंगर वो सीड इनसाइड द कंट्री, ठीक है।
लोगों में गुस्सा बरकरार रहता था, राइट? सो पीपल फेल्ट दैट देयर नेशनल वेल्थ वाज बीइंग टेकन अवे, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, राइट? लेकिन दूसरी कंट्रीज इस चीज का बेनिफिट उठा रही है, राइट? सो वेनेजुएलans had the problem with this, right? They were angry because of this. So internally problems थी पहले से, right? Now this social and economic dissatisfaction became the foundation of the Venezuelans future, right? Political conflict जो हो रहा है यूएस के साथ में, this was the one of the major, ठीक है? तो ये चीज आज की कहानी नहीं है, 2 दिन की कहानी नहीं है, it is like occurring there for many years, ठीक है? लोगों के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज को लेके, right? Now, okay, so Vikas says that this is also a violation of human rights and violation of sovereignty of India. Exactly. खुद के ही decisions नहीं बना पा रही है, other countries are like intervening. So yes, this question sovereignty, right? और questions उठाती है political power on Venezuelans also, right? They cannot protect themselves, right? तो अब क्या हुआ? The real break in US और Venezuelans relations began जब Hugo Chavez came to power in 1999, ठीक है? So this Chavez followed a socialist ideology. Socialist ideology मतलब उन्हें बेसिकली ये बिलीव था कि जो स्टेट होती है, राइट, दे शुड कंट्रोल, फॉरेन कंपनीज नहीं, दे शुड कंट्रोल दी ऑयल, और उनको जो इनकम है, जो इनकी इनकम जनरेट होनी है यहाँ से, वो एजुकेशन में यूज होनी चाहिए, हेल्थ केयर में यूज होनी चाहिए, वेलफेयर में यूज होनी चाहिए, राइट? और उन्होंने जो है ओपनली क्रिटिसाइज किया था जो यूएस का एक्ट था, राइट? उन्होंने बोला कि अमेरिका जो इंटरफेयर कर रही है, राइट, फॉर इट्स ओन बेनिफिट, दिस इज नॉट राइट, राइट? नाउ अब क्या हुआ कि दिस चेवेज नेशनलिस्ट वेनेजुएला's oil industry, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने लाइक दे कुड टू कंट्रोल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ठीक है? मतलब ये हुआ कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंट्रोल ले लिया अपने ऑयल प्रोडक्शन पर, ठीक है? फॉरेन कंपनीज जैसे पहले लेती थी, अब उन्होंने खुद ने ही कंट्रोल ले लिया वेनेजुएला की गवर्नमेंट, राइट? सो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्टली हर्ट कौन हुआ? यहाँ पे डायरेक्टली हर्ट हुआ यूएस की इकोनॉमी, है ना? उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो हट हुए, ठीक है? तो पहली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। सो दिस चावेज ओल्ड बिल्ड क्लोज रिलेशंस विद कंट्रीज, जैसे कि रशिया के साथ इंटरेस्ट अच्छे हैं उनके, चाइना के साथ अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं, ठीक है? और इनकी राइवलरी किसके साथ चल रही है? इनकी राइवलरी चल रही है यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, राइट? तो इसी पॉइंट के साथ में क्या हुआ? वेनेजुएला बिकेम्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस इन लैटिन अमेरिका. Now, the United States, on the other hand, began to see Venezuela as a political and strategical problem as well. ठीक है, खुद के ही रीजन में, जो कि ट्रेडिशनली कंसीडर किया जाता है एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुई है, प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी, ठीक है? अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि आफ्टर चेवेज डेथ व्हाट हैपेंड 2013 में निकोलस मडूरो बिकेम प्रेसिडेंट, ठीक है? तो मडूरो इनहेरिटेड अ वीक इकोनॉमी दैट वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस आल्सो, ठीक है? तो क्या हुआ कि व्हेन ग्लोबल प्राइस फेल, सो वेनेजुएला's इकोनॉमी कोलैप्स, ठीक है? इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज्यादा देखने को मिला, फूड, मेडिसिन, ठीक है, वो और ज्यादा स्कार्स हो गई, एंड पब्लिक प्रोटेस्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए, तो इंटरनली जो थी, जो पहले गुस्सा था वो और ज्यादा होने लग गया, राइट? नाउ मेनी कंट्रीज स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स एक्यूज्ड मडूरो ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेंस और मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस, ठीक है? अब यूएस का इस चीज में इंटरेस्ट क्या है? व्हाई ही इज ब्लेमिंग दिस गवर्नमेंट, ठीक है? Because there is a party which is in opposition of Maduro, and US thinks that party is much capable than Maduro party, right? अब internally जो है, इसकी कहानी भी आगे पढ़ेंगे। अब सिर्फ यहाँ तक नहीं है, तो इस पे क्या हुआ कि in response this what happened, यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे इम्पोज कर दिए बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, वेनेजुएला पर। अब ये जो सैंक्शंस हुए थे, दे ब्लॉक्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स, उन्होंने एसेट्स फ्रोज कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, है ना? तो इससे क्या हुआ कि यूएस आल्सो लाइक रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन लीडर एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेनेजुएला। जैसे कि मैंने बताया, ऑपोजिशन लीडर्स, राइट, हु वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट मडूरो, ही कंसीडर्ड हिम वैल्यूएबल, right, instead of Maduro. Now, this was seen by Venezuela as a direct attack on its sovereignty. क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्री इंटरवेन कर रही है, डिसीजंस कौन ले रहा है? बाहर की कंट्री ले रही है, राइट? सो ओवर टाइम दिस ट्रस्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, और ये और ज्यादा हॉस्टाइल होगी सिचुएशन, राइट? तो कहां से शुरू हुई थी? ऑयल की कहानी से शुरू हुई थी, लोगों को गुस्सा था, उन्होंने कंट्रोल ले लिया गवर्नमेंट ने फाइनली, लेकिन वो डायरेक्टली अटैक किस पे कर रही थी? यूएस की इकोनॉमी पर, तो इस पे यूएस को और ज्यादा गुस्सा आया, राइट? So these internal problems were like arising for many years. 1999 से, उससे पहले से भी ये चीज जो है चलती आ रही है, right? So this is not a story of 1 year or 2 year. ये बैकहैंड से स्टोरी चलती आ रही है। अब अगर इतनी बात हो रही है, now what happened? Against this background of long-term tension, the event 3 January 2026 took place, right? इस कहानी के चलते हमारे पास एक और इंसिडेंट आता है। Now in the early mornings, right, hours of the morning, now what happened? Residents of this carcass heard multiple explosions, right?
अब देयर वर लाइक रिपोर्ट्स ऑफ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर लाइट चली जाती है, पैनिक स्प्रेड हो जाता है, पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है क्विकली स्टेप इन करती है, राइट. So President Maduro, he addressed the nation and declared that Venezuela was under foreign military aggression. Now he directly accused the United States of carrying out a military attack. A state of emergency was declared there. ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब इनिशियली ये सारी चीजें हो रही थी, राइट. So internal security was like soon became a serious international crisis over here. People started like, especially international countries, they started engaging in this. ठीक है. Now this situation escalated further when US President Donald Trump publicly stated कि यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे कंडक्ट करा है लार्ज स्केल स्ट्राइक वेनेजुएला पर, ठीक है. इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ दिन पहले एक और न्यूज कलेक्ट की थी, राइट, कि जहां पर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट वाज मीटिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, है ना. सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच अराइज्ड सडनली, राइट. ये बहुत टाइम से हमारे पास चल रही है चीजें, ठीक है. अब सो यहाँ पे क्या उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, उन्हें बेसिकली दे इज अंडर आर कंडक्ट, एंड हिज वाइफ आल्सो हैड बीन कैप्चर्ड एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन. सो सच अ क्लेम शॉक द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना थ्रू मिलिट्री एक्शन इज एक्सट्रीमली रेयर इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है. अब ये बात सच है कि दिस वुड रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, है ना, और उसके साथ साथ में प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी और हमारा नॉन इंटरवेंशन को भी इट इज गोइंग टू हार्म. सो इट रेजेस वेरी वेरी पावरफुल एंड सीरियस questions on countries like this. So these powerful countries might openly start using military forces to remove government, right, if they dislike, बिना किसी इंटरनेशनल अप्रूवल के, ठीक है. तो आपने यूएन बनाई ही क्यों, राइट. व्हाई देयर आर इंटरनेशनल लॉज अगर तुमने वो चीज फॉलो ही नहीं करने, है ना. तो ऐसी ऐसी चीज भी यहाँ पे क्वेश्चंस होती है, राइट. नाउ इफ यू आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, सो इट डजंट मीन दैट यू विल कैप्चर प्रेसिडेंट इन विद मिलिट्री एक्शंस, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं, राइट. I still cannot see you people writing down. ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हो? That something is not going in your mind after reading this news. इतनी कहानी सुना रही हूँ मैं तुम्हें. अच्छा, अब अगर पॉलिटिकल पावर, ठीक है, अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, राइट, अबाउट सच कंट्रीज, तो चाइना पीछे कैसे रहेगा? चाइना की बात करते हैं. तो क्या हुआ है, दिस ग्लोबल रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट, ठीक है. चाइना ने भी स्ट्रांगली अपोज करा जो यूएस ने किया था, राइट, एंड दे कॉल फॉर द रिलीज ऑफ मडूरो. नाउ चाइना अर्ज्ड कि जो भी चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट, दिस शुड बी सॉल्व्ड इमीडिएटली. प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट.
Okay, so as we were talking, I'm sorry, there was some problem. Okay, so Gargi says India should focus on strengthening itself because the international justice has been failed and might impact the developing countries too. That's very true. अब अगर हम ये सारी चीजें बात कर ही रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे अगर ऐसे हार्शली डिसीजन मिलिट्री पावर का यूज किया जाए जस्ट बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है, और तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट, एंड यू आर डूइंग इट. So how it is going to affect international laws, right? So this basically raises questions on these things as well, है ना? तो अंडर इंटरनेशनल लॉज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, अ कंट्री इज नॉट अलाउड टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट एनी अनदर कंट्री, ठीक है, और स्पेशली यूएस ने क्या किया, वीकेस्ट कंट्री है और उस पर बेसिकली हमला कर दिया, राइट. सो इट इज लाइक अनलेस दे आर एक्टिंग एज सेल्फ डिफेंस, ठीक है, या फिर अप्रूवल फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जब तक उन्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक ऐसा कोई भी एक्शन करना इज नॉट राइट, राइट, अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है. अब अगर ये सारी चीजें हुई रही है, राइट, सो दिस क्राइसिस वंस अगेन हाईलाइटेड क्या कि लिमिटेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, डीप डिविजन्स कैसे होता है हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल का, वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द यूएन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि हमारे मेजर पावर्स की जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट. अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दिस पावर पॉलिटिक्स ऑफन लाइक ओवरराइड्स द इंटरनेशनल लॉ एज वेल, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड आस्क कि यूएन के लॉज बनाए ही क्यों है जब वो फॉलो ही नहीं हो रहे, राइट. So if a country is there और जो कि इतने ज्यादा power hold करती है, right, so you are going to let them do this, right. So these are the questions that comes in our mind, right. Now अब ये तो हमें समझ में आ चुका है कि इट्स एट इट्स कोर्स व्हाट हैपेंड दैट वेनेजुएला क्राइसिस इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट रिसोर्सेज, इट इज अबाउट आइडियोलॉजी, है ना. और वेनेजुएला जो कंट्रोल है, राइट, ओवर पास्ट वास्ट ऑयल रिजर्व्स. So this socialist, model and its alignment with US arrivals have made it a long-term target of pressures, right? And the United States, driven by the strategic incidents and basically regional dominance, also seen over here, right? अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है कि कैसे इंटरनेशनली, ठीक है, कोई भी लॉज बनाए जाते हैं वो फुलफिल नहीं होते व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रॉन्ग पावर, राइट. सो दिस एपिसोड क्लियरली दिस स्टोरी क्लियरली शोज टू अस कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स स्टिल ऑपरेट्स ऑन रियलिस्ट प्रिंसिपल्स, राइट, जहां पे नेशनल इंटरेस्ट जो है दे कम बिफोर मोरालिटी, राइट, दे कम बिफोर लॉज, राइट. तो यही चीज है, यही चीज समझनी होगी कि ये जो इंसिडेंट है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्लोजन इन कार्कस, राइट. ये बेसिकली रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर ऑयल, अबाउट ideology, about power, showing military power to other countries, है ना. And it shows कि कैसे एक history, कैसे economic, कैसे political, right, when they come together, and why international laws often struggle when powerful countries decide to act in their own interest, ठीक है, जैसे कि यूएस ने किया, right. So then again this raises many deep questions कि अगर यही चीज है तो इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट होगा, हाउ इंडिया कैन improve themselves when it comes to making them strong, as Gargi also said, one of the students also said. So yes, these are the things that we have to remember and we should start working on, ठीक है. तो जहां तक बात है, दिस इश्यू इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व सून, तो यू आर गोइंग टू सी दिस न्यूज अ लॉट. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि प्रीलिम्स में एज आई सेड कि जो भी इंटरनेशनल न्यूज और जो भी कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देम, ठीक है. हिस्ट्री जितनी बढ़ सकते हो उतनी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, ठीक है. इसके सिर्फ ये पहलू नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एनालिसिस व्हिच कैन कम विद दिस न्यूज आल्सो, एंड विल बी कवरिंग इट वन बाय वन, ठीक है. चलो अब दूसरी न्यूज के साथ में बढ़ते हैं. चलो इससे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं. विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अ लीगल ग्राउंड ऑफ द यूएस मिलिट्री फोर्स बाय मेंबर स्टेट. ये रहा क्वेश्चन एंड स्टार्ट आंसरिंग. आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू पीपल. एंड एज आई सेड बिफोर, आंसर जल्दी लिखोगे और उसके बाद में यू हैव टू राइट वन लाइन कि वो आंसर क्यों सही है.
मुझे आंसर नहीं दिखाई दे रहे बच्चों के, क्यों? ओके, द आंसर इज 1 एंड 2, ठीक है। क्यों है? अंडर द यूएन चार्टर क्या होता है? आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग? ये स्टूडेंट्स, ओके, फर्स्ट इज सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट ऑन आर्म्ड अटैक, ये भी सही है क्योंकि अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर इट इज देयर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है एक्शंस ऑथराइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि दिस इज आल्सो अलाउड अंडर चैप्टर 7th ऑफ द यूएन चार्टर, राइट। व्हेन इट कम्स टू थर्ड, ये गलत है, राइट, व्हिच इज प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस अप्रूव्ड विदाउट सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल, ठीक है। क्यों? दिस इज नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल ग्राउंड अंडर इंटरनेशनल लॉज एंड रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, राइट। सो दीज सी, ओके, वेरी गुड विकास, ओके। चलो इसके साथ ही अगली न्यूज पे मूव करेंगे। ओके, क्या आज मॉर्निंग गुड नहीं है क्या? व्हाई पीपल आर नॉट राइटिंग आंसर्स? चलो लेट्स मूव टू अनदर न्यूज। इंडोर वाटर कंटामिनेशन क्राइसिस, ट्रस्ट ऑन म्युनिसिपल टैप सप्लाई ड्राइज अप, रेजिडेंट्स पे फॉर वाटर, ठीक है। तो क्या चेंजेस आए हैं? सी इंटरनेट ग्लिच, अच्छा इंटरनेट, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो तुम लोग इंदौर में रह रहे हो, ठीक है, जब भी इंदौर का नाम आता है तो क्या आता है हमारे दिमाग में? इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, है ना, यही दिमाग में आता है जब भी हम इंदौर का नाम सुनते हैं। सो नाउ पीपल लाइक दे वर प्राउड ऑफ देयर सिटीज क्लीनलीनेस, ठीक है, और किसको नहीं होगा, राइट। सो इंक्लूडिंग जो हमारे वाटर है दैट कम्स फ्रॉम म्युनिसिपल टैप, उस चीज पर भी बहुत प्राउड था उनको। बट एवरीथिंग चेंज आफ्टर अ मैसिव वाटर कंटामिनेशन ट्रेजेडी दैट हैपेंड इन इंदौर, ठीक है। तो क्या हुआ दिसंबर 2025, इसकी न्यूज में पहले भी कवर कर चुकी हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको पढ़नी पड़ेंगी जो हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दैट न्यूज ऑफ माइंड, ठीक है, ये न्यूज सुनने से पहले, ठीक है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे रेजिडेंट्स होते हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग सिक, राइट, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन। सो आफ्टर ड्रिंकिंग टैप वाटर, दीज वर द थिंग्स दैट दे वर फेसिंग, राइट। सो दिस आउटब्रेक वाज सो बैड कि बहुत ज्यादा लोग जो थे मर चुके थे, राइट, एंड हंड्रेड्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, हंड्रेड्स, राइट, सच अ ह्यूज नंबर, है ना। सो पीपल सस्पेक्टेड कि जो सिटी का जो पाइपलाइन है वो कंटेमिनेट हो चुका है, ठीक है, पॉसिबली बाय सीवेज लीकिंग इनटू द ड्रिंकिंग वाटर, इनटू थ्रू लाइक द क्रैक्स, या फिर किसी लीक की वजह से। तो ऑफिशियल्स कंफर्म कि हाँ भाई माइक्रोबल जो कंटेमिनेशन है वो देखने को मिला है, और उन्होंने इस चीज को एडमिट भी किया कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, एंड दिस कुड बी हायर देन ऑफिशियल फिगर आल्सो। तो इस ट्रेजेडी के बाद व्हाट हैपेंड, तो इस ट्रेजेडी के बाद, राइट, पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, ठीक है, इवन दो अथॉरिटीज ट्राई टू रीअश्योर देम, एंड बेसिकली दे ट्राई टू कोरिलेट द पाइप्स एज वेल, ठीक है, बट फिर भी पीपल हैड दिस फियर इन देयर माइंड कि हम लोग वापस से बीमार हो जाएंगे आफ्टर ड्रिंकिंग टैप वाटर, ठीक है, एंड मेनी हैव स्टार्टेड बाइंग बोटल, दैट बोटल वाटर, ठीक है। अब सोचो कि कोई मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है ऐसा पानी, राइट, बट स्टिल ही हैव टू डू दिस, राइट। सो वो 20 से 30 रुपए पर जार खर्च कर रहा है जस्ट टू बी सेफ, ठीक है। एंड सम फैमिलीज आर कंटिन्यूइंग टू बॉयल या फिर ट्रीट वाटर एट होम आल्सो बिफोर यूजिंग इट, बट देन अगेन कॉन्फिडेंस दैट वन एग्जिस्ट इन सिटीज क्लीन टैप वाटर, इट इज गॉन, द ट्रस्ट इज गॉन, राइट। तो कुछ कुछ ही नेबरहुड में क्या आपको सीन देखने को मिल रहा है कि टी स्टॉल्स के ओनर जो है वो भी बोटल वाटर यूज कर रहे हैं। Imagine those people also who like make tea, so customers feel safe, right, though they are not raising prices, ठीक है, पैसे बढ़ाए नहीं चाह रहे, but still they are taking the measures, right. So people are worried कि अगर वो ऐसा जो पानी लेंगे, right, this is going to add what, this is going to add financial burden, है ना। तो बेसिकली स्पेशली जो हमारी जितने भी लो और मिडिल इनकम फैमिलीज है, राइट, उस पर प्रेशर आएगा, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर मेडिकल एक्सपेंसेस, एंड नाउ दीज आर द थिंग्स दैट दे आल्सो हैव टू फेस, राइट। अब ये न्यूज़ पढ़ने से पहले तो समझ लेते हैं कि हम लोग ये न्यूज़ पढ़ क्यों रहे हैं, क्या-क्या कनेक्ट करती है ये न्यूज़, किस पेपर से कनेक्ट करती है। ओके, ओके। पहला तो है हमारा जीएस 2, राइट। सो जीएस 2 में हमारे पास कनेक्ट होता है गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है वो पता चलेगा, जुडिशियल ओवरसाइट हो जाता है तो क्या होता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। जीएस 3 की बात करें, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेव वाटर, सैनिटेशन एंड रिस्पॉन्सेज टू इट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। अच्छा, then why we are paying money, water supply provided by government, again these are the questions that come in people's mind, है ना, लोगों के दिमाग में यही तो चीजें आती है
पे ही क्यों कर रहे हैं जब हम लोग अगर बाहर से पानी ले रहे हैं तो? बिल्कुल सही। अच्छा, एग्जैक्टली हुआ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगी जो लोग इस न्यूज को पहली बार पढ़ रहे हैं, ताकि ताकि समझ में आ जाए एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो क्या हुआ है कि कंटामिनेटेड म्युनिसिपल टैप वाटर इज देयर, राइट, एंड दिस हैपेंड, राइट, इन इंदौर। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंटामिनेटेड टैप वाटर था वो हाउस होल्ड में सप्लाई किया गया, राइट, और इसकी वजह से क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक फॉलिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन, राइट, एंड मोर देन 10 पीपल डाइड, ठीक है, जिसमें से एक 6 साल की बच्ची भी थी, सॉरी 6 महीने की बच्ची भी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इंसिडेंट शॉक्ड एवरीवन, राइट। जो सिटी सेफेस्ट, सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती थी, राइट, raising and occurring such issues basically raise lots and lots of questions, right? अब ये क्या कोई सडन प्रॉब्लम थी क्या, ये एक ही दिन में आ रहा है? नहीं, रेजिडेंट्स ने पहले भी बोला है कि टैप वाटर जो था वो बहुत दिन से डर्टी आ रहा था एंड फाउल स्मेल वाज सीन देयर एंड इट वाज लाइक अनसेफ फॉर 2-3 इयर्स। तो रिपीटेड कंप्लेंट्स वर देयर, राइट, रिपीटेड कंप्लेंट्स वर मेड टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, राइट। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म नेग्लेक्ट दिखाता है ऑफ बेसिक सर्विस दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, राइट। अब for UPSC student this is classic example of early warning signs that are ignored by the authorities that you can mention in your paper as well, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा आपके पास कंसेप्ट आएगा, so this is the example that you can write। अब ये समझ लेते हैं कि कॉज क्या था। तो टेक्निकल रीजन ये था कि इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया कि जो मेन वाटर पाइपलाइन थी वो लीक हो चुकी थी। तो जो पाइपलाइन थी दैट वाज लाइक पासिंग अंडर अ टॉयलेट, ठीक है। सो दीज डर्टी सीवेजेस वाटर एंटरिंग द ड्रिंकिंग वाटर लाइन, राइट, इट वाज अ सीन एज, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस वायलेशन है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नॉर्म्स का, राइट। अब इस पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स लिया, जुडिशियल ने क्या रिस्पॉन्स लिया इस पर, ठीक है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की एक्शन की बात करें तो वाटर सप्लाई सब इंजीनियर वाज डिसमिस्ड आफ्टर दिस, ठीक है। अ जोनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर्स वर सस्पेंडेड आफ्टर दिस, ठीक है। जो 3 नंबर बेसिकली प्रोब कमेटी वाज फॉर्म, राइट, और इस कमेटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। तो ये दिखाता है हमें कि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड पब्लिक सर्विसेज, राइट। अबाउट दीज थिंग्स वी गेट टू नो। अब इस कमेटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे हमारे पास इंजीनियर्स होंगे, म्युनिसिपल के लोग होंगे, राइट। ऑल दीज अथॉरिटीज विल बी देयर हु विल बेसिकली टेक एक्शंस अगेंस्ट and they'll try to find out exactly problem kahan thi, although the problem is clear but then again they'll try to investigate properly। Now I hope aapko kahani samajh mein aa gayi। Actually it's responsibility of government to provide clean water as per article 21, exactly Vikas, exactly that's what we are talking about। ab madhya pradesh high court ne, right, they asked, तो दे आज द गवर्नमेंट टू सबमिट अ स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर करा है फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑयल पेशेंट्स, राइट। तो ये क्या हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट करता है जुडिशियल ओवरसाइट इन प्रोटेस्टिंग सिटीजंस राइट आल्सो, राइट। अब ये डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा जब हम इसकी बात करते हैं, तो पहले तो लॉस ऑफ ट्रस्ट इज देयर, है ना। लॉस ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेजिडेंट्स दे कंप्लीटली स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, राइट। इवन आफ्टर दिस क्लोरिनाइजेशन पीपल डू नॉट ट्रस्ट द सप्लाई। अगर एक बार ट्रस्ट टूट जाता है, राइट, देन इट इज वेरी वेरी हार्ड टू रीबिल्ड, राइट। इस चीज को तो सब मानते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं फाइनेंशियल बर्डन की। ऑलरेडी पीपल आर लाइक सफरिंग फाइनेंशियली, ठीक है, देयर लव्ड वंस आर लॉस्ट, राइट, दे आर फेसिंग दीस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। अब उन्हें 10 रुपए या 20 रुपए की बोतल भी खरीदनी पड़ रही है जस्ट टू मेंटेन the health crisis, right? So this basically tells us about the extra spending that is going to be reduced, money for food, ठीक है, education pay, health pay, right? So these are the crises that people are facing there, right? Now बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं तो टी स्टॉल ओनर जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वो बोटल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहा है, वो बेसिकली इसलिए कर रहा है ताकि रीअश्योरेंस मिले कस्टमर्स को, राइट। सो दिस शोज व्हाट, दिस शोज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आल्सो, कि कैसे दिस कैन चेंज कस्टमर बिहेवियर आल्सो, ठीक है। इट कैन अफेक्ट स्मॉल बिजनेसमैन, राइट, क्रिएट करेगा हमारी एवरीडे लाइफ में फियर आल्सो, राइट। सो दीज थिंग्स आर पीपल, इंदौर पीपल आर एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ। नाउ इफ वी आर लाइक रीडिंग अबाउट दिस, तो अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों बना ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अनसेफ वाटर है, क्या क्या कॉज कर सकता है, ये हमें डायरिया देगा, क्लोरिया देगा, टाइफाइड, राइट, ऑल दीज डिजीजेस आर गोइंग टू कम, राइट। अब एक्सेस टू ड्रिंकिंग सेफ वाटर, राइट, दिस इज राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, जैसे कि हमें बताया किसने, हमें बताया विकास ने, राइट। सो दिस इज अ बेसिकली अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राइट, दे शुड प्रोवाइड अस, राइट। अब वो ही चीज नेग्लेक्ट कर गई, 1-2 साल से अगर कोई कंप्लेन हो रही है, पीपल आर नेग्लेक्टिंग इट, राइट। सो दिस शोज कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है ग्राउंड रियलिटी में इन मेजरिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। अब क्या क्या समझ में आपको इस न्यूज से, इस समझ में यहाँ पे आकर आपको समझ में आया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट, दिस इज आवर राइट, कोर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। अब ये लिंक करता है टू SDG 6 एज वेल, राइट। इसके बारे में मैंने पहले बताया
ठीक है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में, है ना। गवर्नेंस और ट्रस्ट इज ब्रोकन। इंदौर जो पहले हमें क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती थी, नाउ ट्रस्ट इज ब्रोकन फ्रॉम देयर। पब्लिक सर्विसेज जो है अब वो रिलायबल रहेंगी, क्रेडिबल रहेंगी, राइट। एंड एज आई सेड अगेन, वंस ट्रस्ट इज लॉस्ट पीपल टर्न टू प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट पीपल आर assuring their healthcare themselves, है ना। this creates what? This creates inequality, right? Only those who can pay will be safe, है ना। जो नहीं खरीद सकते हैं बोतल, वो तो वही पानी पिएंगे ना। So this is creating what? This is creating the gap between upper class and then again lower class, right? So all those people who can afford, only they can basically have the water. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स के बारे में पता चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि पुरानी पाइपलाइंस थी, ठीक है, और मॉनिटर जो था वो नहीं किया गया, पूरा मॉनिटरिंग वाज देयर, राइट। सो इसकी वजह से क्या हुआ? दिस डिजास्टर हैपेंड। सो दिस वाज द एग्जांपल दैट वाज सीन, राइट। सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली व्हाट दिस न्यूज़ इज टेलिंग टू अस। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड विद दिस विल एंड टुडेज क्लास। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू पीपल। आंसर लिखना शुरू कर दो इसका। As I said, you'll get 4 to 7 seconds, ठीक है, to read the question and to write in the chat box. Okay, the correct answer is 1, 2, and 4, right? Lack of safe drinking water resources, poor hygienic and sanitation practices, and poor contamination of drinking water. Okay, so with this, we'll end today's news. And about the PDF, the PDF will be pinned in the comment section only, right? You can have access to those PDF, and make sure that you're writing in the comment section the task that I've given you in the starting of the class. So with this, we'll end today's class. Yes, Diya Pradeep, the correct option is A. Okay, perfect. Thank you, students.